Good morning, students. Today I am going to proceed the same chapter, Landscape of the Soul, which has been written by Nathaniel Travere. In the previous lectures, I told you about the two arts. One was connected to Chinese and second was connected to European. And in the very previous chapter, I described you Chinese concept of art. And I told you about the Chinese concept of art really specially stresses on spiritual or inner one. In the same line, I am going to describe the concept of Feng Shui. This concept, I mean to here, I am going to explain about the Chinese concept. This concept is expressed as Feng Shui. It means the Chinese concept is well expressed with the help of the concept of Feng Shui. You have to understand what is Feng Shui because it is a very important concept, especially in Chinese art. This concept is expressed as Feng Shui. Literally, mountain, water, which used together represent the world landscape. Concept means an idea. This idea is expressed the word Feng Shui. There is one word in Chinese concept that is Feng Shui, जिसका शाब्दिक अर्थ जिस Feng Shui का जो आइडिया है, what are the ideas being presented in Chinese concept, the literally means of the Feng Shui is mountain water. इसका literally मतलब शाब्दिक मत होता है mountain water, which used together represent the word landscape. If I combine the both, then it represents the word landscape. Whenever we have to draw any landscape, so usually we describe water and mountain. More than two elements. One element is connected to mountain and second element is connected to water. More than two elements of an image, these represent the complementary pose. Actually, these have been called the two complementary pose. Complementary means complete. Because on one side, if I take the heaven, it is in the connected to sky, and second is to earth. If I would talk about the mountain, it reaches vertically towards heaven. If I would talk about here the water, it rests on usually rests on the earth. तो अगर मैं इन दोनों इफ़ आई से दीज आर द वेरी दीज टू पोल्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स है. अब कौन कौन से पोल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहा है? आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द माउंटेन वाटर. इसके अलावा ये माउंटेन वाटर कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स भी हैं जिनको रिप्रेजेंट करती हैं, रिफ्लेक्टिंग द दाइस व्यू ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स. Taoist means here philosophy of Tao, कि दाव की फिलोसफी है जो यूनिवर्स के बारे में प्रेजेंट करती है. द माउंटेन इज यांग. माउंटेन मीन्स यहाँ पर यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन. हैव यू एवर सीन माउंटेन? माउंटेन्स पोजिशन इज ऑलवेज वर्टिकली, हमेशा वर्टिकली होता है. वर्टिकली नो द पोजिशन इन सच ए वे, वर्टिकली पोजिशन ऐसी होती है और ऐसा लगता है कि जैसे माउंटेन इज गोइंग टुवर्ड्स द हेवन, जैसे वो हेवन के साइड जा रहा हूँ. और उसको यांग भी कहा गया है. देन इट इज स्टेबल. वी नो वेरी वेल दैट ए माउंटेन स्टेबल, एक जगह स्थिर रहता है, वार्म होता है और ये ड्राई होता है. द क्वालिटीज ऑफ माउंटेन हैज़ बीन टोल्ड दैट ईयर. फर्स्ट इसको यांग कहा गया है. आप इसे देखते हो ऐसे लगता है वर्टिकली हेवन की तरफ बढ़ रहा हो, और दूसरा यहाँ पर ये स्टेबल होता है, वार्म होता है, ड्राई होता है. ऑन द अदर हैंड आई टेक द वाटर. वाटर इज यीन. वाटर को यीन कहा गया है. ये हॉरिजेंटल होता है. हॉरिजेंटल इज जस्टिफाई एज यू आर ऑब्जर्विंग द पेन. ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है और ये कहाँ पर रेस्ट करता है? अर्थ पर रेस्ट करता हुआ नज़र आता है. पानी को आप देखते हो हमेशा नीचे की तरफ रहता है. तो हॉरिजेंटल आप पूरी तरह से अपोजिट कंसेप्ट ऑब्जर्व करेंगे. देन रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, मॉइस्ट होता है और कूल होता है. देन द इंटरेक्शन, whenever the interaction takes place here, yin has also been called the receptive. yin को receptive कहा गया है. it means it accepts everything, it receives everything. फेमिनिन का एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का, ये फेमिनाइन कनेक्टेड टू फीमेल. जैसे मैस्कुलिन फेमिनाइन होता है आपका जेंडर में,
ये फीमेल कंसेप्ट है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, इसका जो पूरक है, इसका जो पार्टनर है, दैट इज यंग। इट इज़ एक्टिव, ये एक्टिव है, और मैस्कुलाइन है, मेल कंसेप्ट है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। और इसी दाओइज्म का, दाओइज्म जो कंसेप्ट है उसका क्या माना गया है, एक फंडामेंटल बेस माना गया है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग हियर। सेंशुई, शेंशुई का लिटरली मीन्स हियर माउंटेन वाटर। अगर मैं शेंशुई के पार्ट को डिवाइड कर लेती हूँ, इफ़ आई डिवाइड इन दे, तो उसका मतलब होता है शेन माउंटेन, शुई मीन्स वाटर, और ये दोनों कंबाइन करके देन लैंडस्केप इज देयर। एंड दीज हैव बीन कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। इन दोनों को क्या माना गया है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स कहा गया है, क्योंकि वन में माउंटेन इज कनेक्टेड टू हेवन एंड वाटर इज कनेक्टेड टू अर्थ। और इसको क्या माना गया है, दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। अब यू आर ऑब्जर्विंग हियर द माउंटेन। माउंटेन की आप पोजिशन हमेशा देखते हो कि ऊपर हेवन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये वर्टिकली है कि माउंटेन एक तरफ आई कैप्ट वन साइड माउंटेन, उन सेकेंड साइड आई कैप्ट द वाटर। यहाँ पर मैंने वाटर को रख लिया है, और ये हॉरिजेंटल है और अर्थ पर ही रेस्ट करता हुआ नजर आता है। अब नाउ माउंटेन का कंसेप्ट देखिएगा, वाटर का, दोनों का देखिएगा। ऑन वन साइड आई कैप्ट माउंटेन एंड सेकेंड साइड आई कैप्ट वाटर। माउंटेन को यांग माना गया है और वाटर को yin। माउंटेन मैस्कुलाइन कंसेप्ट है, मेल कंसेप्ट है, और यहाँ पर वाटर को yin कंसेप्ट माना गया है। माउंटेन वर्टिकली फॉर्म में होता है और yin हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आप रिवर्स देखते हो, ओशंस देखते हो, हमेशा अर्थ पर ही पाए जाते हैं, जबकि हैव यू हैव सीन आल्सो माउंटेन, माउंटेन हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। माउंटेन इज वार्म और ड्राई होता है सन में, जबकि whenever we observe water it's कूल, कूल होता है, मॉइस्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। और माउंटेन की बात करें तो स्टेबल होता है, एक्टिव होता है, अंदर अंदर एक्टिविटी चलती रहती है, वैसे इट स्टेबल। इफ़ आई वॉट अगेन टॉक अबाउट वाटर, तो रिसेप्टिव होता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और आई होप यू गेट क्लियर द आइडिया। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इसके बाद देखिएगा, what is often overlooked. I describe the two poles, haven't described these two poles. What is often overlooked? फिर भी एक चीज़ को जो इग्नोर कर दिया जाता है, that is third essential element. I told you about the two elements. Now here I am talking about the third element. अब मैं थर्ड एलिमेंट की बात कर रही हूँ, which is usually ignored, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, that is called the middle white. जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द मिडल वैक्यूम। वैक्यूम यू नो वेरी वेल दैट ईयर, बिकॉज इन साइंस हैव रेड अबाउट द वैक्यूम। वैक्यूम इज कॉल्ड द एम्प्टी स्पेस। ये जो खाली स्पेस होता है, जो अपने स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। इस दौरान हम, क्योंकि ऊपर स्काई है और नीचे क्या है, अर्थ, उसके बीच के स्पेस को क्या कहा गया, थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, जिसको मिडल वाइड कहा गया है। इफ़ आई वुड टेक हियर अबाउट द हेवन, मैं हेवन की बात करती हूँ, स्काई की बात करती हूँ, तो वो अपर पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर अर्थ की बात करती हूँ तो वो बेसिक पार्ट है, लोअर पार्ट है। अगर मैं मिडिल की बात करती हूँ तो वाइट प्लेस को क्या माना गया है, मिडिल प्लेस माना गया है। वेयर दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद yogic practice of pranayam. Whenever we do the practice of pranayam, so we know very well that here during this procedure, instead being the human being, we are living on the earth. Even then we recall God. कि यहाँ पर रहकर, अर्थ पर रहकर हम किससे कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, हेवन से, गॉड से अपने आप को कनेक्टेड करते हो। तो रियली मैन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम। ब्रीद इन, सांस अंदर लेते हैं, रिटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, ब्रीद आउट, फिर छोड़ते रहें। द सस्पेंशन, कि जिस समय हम जो ब्रीद होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, जो होल्ड करे रखते हैं, एक तरह से सस्टेन करते हैं। ब्रीद इज द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज वॉइड वे मेडिटेशन ऑकर्स। कि ये जो प्रोसीजर चलता है ब्रीदिंग का, यही यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ वाइड प्लेस इज देयर जहाँ पर मेडिटेशन हो पाती है।
where meditation occurs. Because whenever we are doing meditation, you know very well that your breathe in, hold, breathe out. तो ये सब जो breathing हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? इस empty place से we are gaining that here. So now let's further. The middle void is very essential. यूजली हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मिडिल प्लेस वास्तव में बड़ा एसेंशियल पार्ट प्ले करता है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. दैट इज द रीज़न जो हमारा बीच का वैक्यूम है, अर्थ और हेवन के बीच का जो खाली प्लेस है, इसको वाइट माना गया है. वैसे कलरलेस होता है. ये अनपेंटेड स्पेस है जिसको हम पेंट भी नहीं कर सकते हैं. और चाइनीज लैंडस्केप में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यू नो मस्ट कम टू नो. आपको पता होना चाहिए द सेंचुरी कंसेप्ट इज कनेक्टेड टू चाइनीज. ओके, यू कैन अज्यूम दैट हियर कि मैंने यहाँ पर ले लिया हेवन को. ओके, हेवन ऊपर होता है, अर्थ नीचे, दोनों अपोजिट वर्ड हो गए. इसके बीच में यहाँ पर जो खाली प्लेस हो गया, इसको वैक्यूम माना गया है. मैन यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है. विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन मैन इज लिविंग ऑन द अर्थ, और अपना को किससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है? हेवन से, गॉड से अपना को कनेक्ट करने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाई मैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. दैट इज द मेन रीजन मैन प्लेज अ वेरी बेसिक रोल इन इट. in that space between heaven and earth, कि जो middle void है, in the middle void place between heaven and earth, he is for the man, becomes the conduit of communication between both poles of the universe. I'm talking here about the two poles, heaven and earth. कि जो दो poles है, heaven और earth, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, तो वो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. मैन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हियर ही इज़ वर्किंग एज अ मीडियम, ही इज़ वर्किंग एज अ चैनल. एक वो चैनल है कि अर्थ पर रहकर अपने आप को गॉड जो हेवन में प्रेजेंट है उससे कनेक्ट करने की अपने आप को कोशिश कर रहा है. बिकॉज वैन एवर डू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन वी ट्राई टू कनेक्ट आवर सेल्स टू गॉड, गॉड प्रेजेंट इन हेवन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है कौन? मैन एज वेल एज द थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट मीन्स मिडिल वॉइड. नाउ द कंडक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, कि मैन को यहाँ कम्युनिकेशन कहा गया है, एक चैनल कहा गया है, किसके बीच का? जो यूनिवर्स के पोल्स के बीच का. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, माना जाए, far from being lost, expressed by the lofty peaks. Lofty peaks means high peaks. को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वी नो वेरी वेल दैट हियर मैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन फ्रैंकिस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द आई ऑफ द लैंडस्केप. कि मैन को आई ऑफ द लैंडस्केप कहा गया है फ्रैंकिश के वंडरफुल एक्सप्रेशन में. द रीज़न इज क्लियर बिकॉज मैन इज अ पर्सन who can express the idea having seen the landscape. He is able to observe the thing is observed by the person as a physical as well as a spiritual level. He is the only one who can express the idea. This was the part first in which we have described the two arts. One was Chinese and second was European. And here we specially read about Chinese concept. Now you have come to know this excerpt has been taken from landscape. The excerpt landscape of the soul has been taken from Ethics and Spirituality in Chinese painting, especially from there. Okay, now I'm trying to tell you about the different parts. Second part, the different art, it is connected to Indian concept. Its subtitle is Getting Inside Outsider Art. When French painter Jean Duffet Moutet is presented, the concept of art brought. कि फ्रेंच पेंटर हैं जिनका नाम क्या? जीन डफट. ही प्रेजेंटेड द कंसेप्ट, जिसने कौन सा प्रेजेंट कंसेप्ट करा? आर्ट ब्रट का. इन विच ईयर? ड्यूरिंग द 1940s. 1940s means 1941 to 1949. He presented the idea
of art brought in during the 1940s, the art of untrained visionary. What happens here? इसमें जो visionary है, क्या concept है? In this art, that person is included who has not taken any type of training, जिसने किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली है. Earlier, this type of art had no importance was given to such type of person who had not taken any type of training. कि चाइनीज़ कंसेप्ट हो चाहे यूरोपियन कंसेप्ट हो, इसके लिए पहले क्या लेने पड़ते हैं, ट्रेनिंग चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो नई आर्ट आई है उसको क्या कहा गया, आर्ट ब्लड, जिसमें किसी को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. इस पर डिपेंड होता है इनसाइट, अपनी इनर की साइट, विजनरी, दूरदर्शिता मैटर करती है. पहले इसको नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू सच टाइप ऑफ आर्ट फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट well beginning. In the beginning it was hidden, no one gives the importance to such type of art. इसको outsider art भी has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. पर धीरे धीरे जो outsider art है धीरे धीरे become the up now according to interest. It has its own importance in during this period. इस समकालीन पीरियड में contemporary means belong to the same period in which period we belong to. अब इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर. This genre is described as the art of those who have right to be artists. Actually, this style is connected. The art of those who have no right to be artists. Actually, this style is described connected to the art of those person जिनको कोई अधिकार नहीं है आर्टिस्ट कहलाने का. The reason is clear because these type of persons have not taken any basic training. क्योंकि इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. Actually, whatever the ideas are presented by themselves, that they were own creation. इन्होंने अपनी समझदारी से, अपनी इनर साइड से क्या है, आर्ट को प्रेजेंट करा है. Yet show talent. लेकिन ये पर्सन क्या है, इन्होंने किसी पर्सन से, किसी बड़े ग्रेट पर्सन से, किसी टीचर से ट्रेनिंग ली है नहीं ली है, फिर भी दे प्रेजेंट देयर टैलेंट. पर अपना टैलेंट प्रेजेंट करते हैं अपनी अंदर की इनर साइड से, अपने विट से, अपने माइंड से, अपनी आर्टिस्टिक स्किल से. आपने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे होंगे जिसने अपनी समझदारी से, इनर साइड से अपना कंसेप्ट दिया है. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. Now here उनके जो वर्क है, इट्स अ रियली जो मेन लाइन वर्क चल रहा है, जो एक क्लासिकल आर्ट चल रही है. इन क्लासिकल आर्ट वी नीड ट्रेनिंग, जैसे क्विंटन मैस्टिस ने ट्रेनिंग ली थी, तो ये उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है, जिसको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन प्रेजेंट एरा. Around the time when Dubefoot was presenting his idea during 1940s, was propounding his concept. तो दूसरी तरफ इंडिया में एक आइडिया प्रेजेंट हो रहा था, किसके द्वारा? In India, an untutored genius who has been called an untutored genius. Untutored genius concept is connected to nature. He was creating a paradise. उस समय वो एक स्वर्ग तैयार कर रहा था. Actually, this art is connected to in India nature. Years ago, बहुत साल पहले की बात है, the little patch of jungle, एक छोटे से पैच को, एक छोटे से एरिया को, के जंगल के एरिया को क्लियर करा गया. And this untutored genius, Miss Nekchan, began clearing to make himself a garden. उसने क्या करा? उसको क्लियर करा, एक गार्डन तैयार करा. In that garden, a sculpted in stone, he made many idols, he made many images, he made many उसने बहुत सारे आइडल्स को, बहुत सारी स्टैचूज़ को वहाँ क्रिएट करा स्टोन की हेल्प से. एक्चुअली नेकचंद हैड नॉट टेकन एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर. एक्चुअली दिस गार्डन वॉज क्रिएटेड बाय नेकचंद विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल. उसने जो वेस्ट मटेरियल्स थे, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी बाय यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने यहाँ पर क्या करा, उस रिसाइकल्ड मटेरियल से यहाँ पर चंडीगढ़ में उसने एक रॉक गार्डन तैयार करा. Many of you have seen also this rock garden. I hope so. Really, it's a beautiful example of art blood or outsider art, because Nekchand has given his
whatever the ideas have been presented, whatever the concept has been presented by him in rock garden, that is really marvelous. Actually, he has not taken any type of training. So in India, it is the best example of such type of art.